Despite being the backbone of every profession, the teaching community remains one of the most overlooked section of our society. Teachers shape the minds that go on to become doctors, engineers, leaders, and thinkers. Yet, the very hands that build the nations are rarely acknowledged. While the students rise to fame and power, the teachers who nurture them are often left in the shadows, underpaid, undervalued, and unheard. A society that ignores its educators risks forgetting the very foundation of its future. To do justice with the teaching communities, I have created a platform with the name on YouTube with the name Kuch Alag Sochte Hain. On this platform, I always call the people from the teaching communities, and all those from our communities have achieved great success. So I'm going to introduce our today's guest. Introduction method will be a little different. I am going to show you all a video which will describe our today's guest. Please watch this video. We're diving into the truly incredible journey of MD Rizwan. I mean, this is a man who went from selling chocolates on city trams just to get by to reviving an entire industry and changing thousands, and I mean thousands, of lives. It's really a story of two completely different worlds. You have the bustling streets of Kolkata, where a young boy is just fighting for his family's survival, and then you have these rolling tea gardens, where a determined man is fighting for the survival of his whole community. This is the extraordinary journey of MD Rizwan. So, here's how we're going to walk through his story. We'll start with how his life was really defined by service and look at the hardship that forged him. Then we'll follow his career as a public servant, his amazing work as a reformer, and finally, we'll look at the incredible legacy he left behind. Okay, let's get into it. Part 1, a life of service. Because really, if you boil it all down, at the very heart of MD Rizwan's journey is this one simple principle, an absolutely unwavering commitment to serving other people. Section 2, from hardship to hope. You know, a story like this doesn't just come from nowhere. It all began with some pretty immense challenges that would shape the character of the man he was truly destined to become. So, picture this. It's Kolkata, 1964. Mr. Rizwan is born, but his whole world gets turned completely upside down when he loses his father while he's still in school. This wasn't just a personal tragedy. It was a moment that threw this immense responsibility right onto his young shoulders. He had to grow up, and he had to do it fast. Can you imagine that? Being a young student, but instead of just worrying about homework, you're out there riding trams and buses, selling chocolates just so your family can make ends meet. This wasn't some part-time gig for pocket money. This was a necessity, and it built this foundation of resilience and this powerful work ethic that would define his entire life. Okay, Section 3, the public servant. That same drive, that same grit, it propelled him straight into a distinguished career, where all those early struggles actually fueled his ambition to serve. So he gets into the civil service, and he starts this steady, really impressive climb. He becomes the Assistant Labor Commissioner and later gets promoted to Additional Labor Commissioner for the government of West Bengal. Every single step up was just a testament to his skill and his rock-solid commitment to the role. Now for Part 4, Reformer and Educationist. See, his official duties were just one part of the story. At the exact same time he was rising in the civil service, he was building this whole other legacy as a really passionate social reformer and educationist. He didn't just talk about making a change, he went out and built it. He founded a book bank to get resources to students, the Urdu Students Organization to support his community. He organized education melas, fairs, to promote learning, and he even established a school, Kids Gurukul. Every one of these initiatives created new opportunities for thousands of students. But as incredible as all of that was, believe it or not, his most monumental achievement was still to come. He was about to take on a challenge that affected the absolute economic backbone of an entire region and the lives of countless, countless people. Over 100. Just let that number sink in. That's how many closed and failing tea gardens he was instrumental in reopening.
And you have to understand, these weren't just businesses, they were the lifeblood of entire communities. When a tea garden closes, the jobs disappear, the local economy just collapses, and hope, well, hope just drains away. He brought them back to life. So, what does reopening over 100 tea gardens actually mean in human terms? It means hundreds of thousands of workers, or lakhs as it's known in India, got their livelihoods back. It means families could put food on the table again, and whole towns were literally pulled back from the brink of total economic collapse. This wasn't just policy work, it was a lifeline. And the economic impact, just as massive. By reviving this industry, he saved the government crores of rupees. That's tens of millions in public funds that would have been needed for relief efforts. It was a massive win for the workers, a win for the communities, and a win for the state. Which brings us to our final section, a lasting legacy. When we really step back and look at his life, what we see is this powerful legacy built on two parallel pillars of impact. It's this incredible dual impact. On one side, you've got the public servant, administrative excellence, reviving local economies, and saving public funds. And on the other, you've got the social reformer, founding community organizations and championing education, directly helping thousands of people. These two roles, they weren't separate at all. They were two sides of the very same mission. At the end of the day, the boy who sold chocolates on a tram became the man who rebuilt an industry and uplifted a generation. His journey is just this powerful, powerful demonstration that where you start in life doesn't have to determine where you end up, and that a life dedicated to service can create these incredible waves of positive change. So, Modraid Rizwan's life really leaves us with a powerful question, doesn't it? He shows us that hardship, it can be a catalyst. It can create empathy and spark action. It really makes you wonder, how can we transform our own personal struggles into a force for public service? वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आइए कुछ अलग सोचते हैं रिजवान साहब। ये अब हमारी बातचीत होगी, शुरू होगी। तो पहला पहला जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो होगा आपके अर्ली लाइफ और एजुकेशन के हवाले से। आप दिल खोल करके बताएं, बच्चों को रहनुमाई करें ताकि आपकी बातों से बच्चे समझ सके, सीख सके कि कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। अब खाली चाहिए तो आग चाहिए, और आग अगर है आपके अंदर तो आप भी कामयाब हो सकते हैं, जैसा कि हमारे हमारे आज के गेस्ट मोहम्मद रिजवान साहब। सो पहला सवाल, अब आप उसके जवाब से शुरू करें। वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का, अलमाइटी का, भगवान का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज 61 साल 10 महीने की उम्र मेरी हुई है, और पहली बार मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर रियाज साहब ने मौका दिया है, और ये उसका करम है। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे पैदा किया, और जो भी मैं हूँ आज उनकी वजह से हूँ। और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में हिस्सा लिया, या मेरी ज़िंदगी को बनाने में, तरक्की करने में हिस्सा लिया। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा, और पता नहीं है आपने कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर किया। थैंक्स अ लॉट कि आपका ये कुछ अलग सोचते हैं और भी कामयाब हो। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि आपने मुझे जो पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला सवाल पूछा है, तो मैं अपने गेस्ट को बता दूं कि जो लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम लोग शायद किस्तों में, यानी इंस्टॉलमेंट्स में मेरे बारे में सुना होगा, जानते होंगे आप तमाम लोग। टुकड़े टुकड़े में मेरी जिंदगी की कहानी बटी हुई है। तो इन्होंने जैसे 4 सेक्शन में बांटा है आज के इस सेशन को। तो पहला है कि उन्होंने ये पूछा है कि मेरे जो अर्ली लाइफ, जब मेरे फादर मेरे बहुत अर्ली एज में गुजर गए, उनका देहांत हो गया, वफात हो गए, तो उस वक्त से मेरा स्ट्रगल कैसा रहा। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो मुझे मोटिवेट किया या मुझे इंस्पायर किया, उसमें एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है। आप तमाम लोगों ने सुना होगा, उनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली। तो जब मैं क्लास 10 में था, तो अल्ताफ हुसैन हाली का एक कहीं से एब्स्ट्रैक्ट में मुझे मिला पढ़ने को, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भगवान, यानी अल्लाह, जिससे
कोई बड़ा काम लेना चाहता है तो उसे बचपन में ही या कम उम्र में ही माँ या बाप की शफकत से महरूम कर देता है, क्या और बात है। जी। माँ और बाप के प्यार से उसको डिप्राइव कर देता है। और ये मेरे लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरे वालिद के वफात के बाद, क्योंकि मैं उस वक्त क्लास 10 में था और मेरे एग्जाम को सिर्फ 5 महीने बचे हुए थे, और मेरे वालिद उससे 2 महीने से हॉस्पिटलाइज थे। बल्कि कह लीजिए कि 2 महीने से मैं उनके हॉस्पिटल के बेड के पास ही उनकी खिदमत कर रहा था। आई वॉज सर्विंग हिम। लेकिन वन फाइन डे, मुझे याद है 5 अक्टूबर 1979, ही लेफ्ट अस, वो चले गए। और उनकी उम्र उस वक्त 60 साल भी नहीं हुई थी। तो उस वक्त जो मुझे इंस्पायर किया, एक तो ये कि मुसद्दस से हाली का वो इक़्तिबास, जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है, भगवान काम लेना चाहता है, उसको माँ या बाप की शफकत से महरूम कर देता है। तो मुझे लगा कि शायद भगवान मुझसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, और यही वजह है कि मुझे अपने बाप का साया से महरूम कर दिया। एंड आई लॉस्ट माई फादर एट दैट टाइम, आई थॉट। पहला सवाल ये आया। दूसरा जो मोटिवेशनल मेरे पास आया कि मुझे स्कूल के ज़माने में फिल्में देखने का बहुत शौक था। मैंने हिंदी फिल्में, खासतौर से मैं अमिताभ बच्चन का बहुत फैन था। तो उस जमाने में मैंने एक फिल्म देखी थी, दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है अपने उसके यंग एज में कि वो जूते की पॉलिश करता है, और जूते की पॉलिश करने के बाद वो वहां से अपनी जिंदगी को राई से पहाड़ बनाता है, पर वो तरक्की करता है और बहुत आगे बढ़ता है। ये फिल्म, और उसी जमाने में एक फिल्म और देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी, उसका नाम था त्रिशूल। जिसमें उसका एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि मेरे पास 5 पैसे, 5 रुपए भी नहीं है, मैं 5 लाख का सौदा करता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, हम लोग फिल्में देखते जरूर है, बट ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि अगर उसको लोग अपने मोटिवेशनल एस्पेक्ट से देखें और अपने आप को उससे इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, तो हमें लगता है कि इससे बड़ी सीख और नहीं हो सकती। और मैंने उस वक्त ऐसे ही किया, वो 2-3 बातें थी, और मैंने सोच लिया कि भले मुझे, मेरे पास अपने पढ़ने का, रहने का ढंग से घर ना हो, भले मेरे पास उस वक्त एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखा और लाइट ना हो, भले उस वक्त मेरे पास कोई बेड ना हो, कोई बिस्तर ना हो, कोई टेबल ना हो, कोई चेयर ना हो, और भले मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ना पड़े मुझे। तो सबसे पहले मैंने किया कि जब मेरे वालिद गुजर गए, तो उसके बाद बहुत लोगों को मालूम है कि उस वक्त मैं तकरीबन, लोगों ने समझा कि टूट गया है, इसके 5 महीने एग्जाम को बाकी है, माध्यमिक एग्जाम को, 1980 का जो माध्यमिक एग्जाम था, तो ये शायद कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये 2-3 बातें जो मैंने बताया, ये मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मैंने फैसला कर लिया कि अ, अब्बा, मेरे हजूर, मेरे जो वालिद हैं, उनका एक वाकया भी मुझे याद आया कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग कर रहा था, मैं मुझे बहुत, क्योंकि आपने दिल खोल कर कहने कहा है, इसलिए आज दूसरे लोगों के लिए, जो- हालांकि मुझसे भी ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं और किए होंगे और कर रहे हैं, लेकिन आज मेरी बात बारी है, तो मैं बताता चलूं कि जब मैं क्लास 6 में था, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत पर्टिनेंट है आज के इस सेशन के लिए बताना। तो मैं अलजबरा का फ्रैक्शन कर रहा था, अलजबरा का फ्रैक्शन में कर रहा था, और मेरी वालिद मुझसे इतना प्यार करते थे, कभी उन्होंने डांटा भी नहीं था जिंदगी में कभी भी। वो मेरे पास में बैठे हुए थे, और जब मैं फ्रैक्शन कर रहा था, तो मेरे वालिद काफी देर से देख रहे थे, और वो पहला और आखिरी दिन था कि मेरे वालिद ने मुझे एक थप्पड़ रसीद किया। और सिर्फ इसलिए रसीद किया कि उन्होंने ये कहा कि बेटा, तुम्हारे पीछे क्या है, इतना पैसा हम इसलिए खर्च करते हैं कि तुम बनाते हो काटते हो, बनाते हो काटते हो। अलजेब्रा के फ्रैक्शन में, जो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे जो काटना पड़ता है, फ्रैक्शन करना करना पड़ता है, तो मैं उस फैमिली से बिलोंग कर रहा था। बट मुझे फख्र है कि मेरे वालिद भले पढ़े लिखे ना हो, मेरी वालिदा पढ़ी लिखी नहीं हो, बट आज जो भी मैं हूँ, उनके ही मेहनत का नतीजा हूँ। तो खैर, मैं वहां से आ रहा था, मैं अपनी फैमिली का पहला मैट्रिक होने वाला था, रदर रदर अपने खानदान का। और मैं अपने गांव का भी, जो इस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ आबाई तौर पर, बिहार से, तो वहां भी पढ़ाई लिखाई का कोई ज्यादा माहौल नहीं था। तो ये नहीं, मैं कलकत्ता में रह गया, और मैं एक वर्कर का औलाद था। मेरे वालिद कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में एक वर्कर थे, एक श्रमिक जिसको कहते हैं, श्रमिक थे। तो मैंने ये फैसला उस वक्त किया कि चाहे जो भी हो, मुझे अपनी मंजिल पानी है। और मेरे अब्बा के ऑफिसर को देखा था, तो उस वक्त नहीं मालूम था कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर क्या होता है, डिप्टी लेबर कमिश्नर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था।
मुझे इतना मालूम था कि अब्बा जैसे हैं उनका अपोजिट बनेंगे, यानी हम उनके कुछ ऑफिसर टाइप के कुछ बनेंगे, ये उस वक्त का ख्वाब था। तो एनीवे उसके बाद मैंने क्या किया कि अब्बा के इंतकाल के बाद चंद रोज बाद मैंने 15 रुपये का इंतजाम किया। मुझे आज भी याद है कि 15 रुपये का इंतजाम किया, 15 रुपीज आई मैनेज समहाउ, जिसमें हमने सियालदा पैदल गया। सियालदा या पर मैं खजीपुर में था, वहां से 5 रुपया का बयाम खरीदा और 10 रुपया का लॉजेंस खरीदा, और वो मेरी जिंदगी की बस मैंने वो बुनियाद बनी। और वहां से मैंने ट्राम बस में या जहां जहां आपने दिखाया, जो आपने बताया कि लॉजेंस बेचना शुरू किया। लेकिन उस वक्त जो मैंने किया वो ये किया कि मैंने एक गोल फिक्स किया कि मुझे बनना है अपने अब्बा के ऑफिसर जैसा। और वो गोल मुझे ड्राइव कर रहा था, जो मैं 6 साल तक, मैंने माध्यमिक के बाद 6 साल तक, माध्यमिक से लेकर 6 साल तक मैं ये काम करता रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं, मेरा मॉर्निंग स्कूल था मोहम्मद जान में, मोहम्मद जान का स्टूडेंट हूँ मैं, उर्दू मीडियम से, तो मॉर्निंग स्कूल था। मैं स्कूल जाता था, बैग में हमारे किताबों के अलावा वो बयाम होते थे, लॉजेंस के बयाम होते थे। मैं वहाँ का मॉर्निंग क्लास खत्म करने के बाद वहां से निकलने के बाद सियालदा जाता पैदल, लॉजिन खरीदता। लॉजिन खरीदने के बाद फिर मैं ट्राम बस में आता। आने के बाद मैं उसको सेल करता। मुझे आज भी याद है, वो बंगला मुझे इतनी अच्छी और नहीं थी उस रिजवान वक्त। भाई, हाँ आप जब किस सन में आप मॉर्निंग में क्लास रहते थे मोहम्मद जान में, कोई याद है? 80 जी, 81 82 में मैं 11 12 कर रहा था वहाँ, अच्छा इक्यासी अच्छा। 88 में। अच्छा अच्छा, मैं 84 में 19 वहां जाके मॉर्निंग सेक्शन में पढ़ाया करता था। जब हाँ, अच्छा, मैं माशाल्लाह मैं वहाँ माशाल्लाह। क्लासेस लिया करता था। मैं आई कम्युनिटी मिस में यू कि मैं, मैं जी, निकल गया था 12 में, हाँ वहां से हाँ, कहीं निकल गए निकल थे। गया था। हाँ भाई, तो ये कहानी सब, आपकी जो आपने बताई, जी माशाअल्लाह, मतलब ये एक, हमारे जो सामीन सुन रहे हैं वो अपने बच्चों जी को जरूर सुनाएं। और देखें जी कि आदमी के अंदर अगर कुव्वत इरादी हो और इरादा कुछ बनने का हो, तो कुदरत भी अपना रास्ता आपके लिए निकाल देता है। और जो चीज़ लोगों जी के लिए बेइज्जती का सबब बनती है, उसमें आपको मजा आने लगता है। और फिर जो है जी अल्लाह ताला आपको वहां पहुंचाता है जहां आपने सोचा नहीं था। तो इस तरह से आपने मेहनत की और उसके बाद तालीम को जारी रखा। तालीम को जारी रखते हुए तालीम के दौरान जो है फिर आपको कहाँ तालीम कहाँ तक आपने हासिल की, और फिर आपको ये कंपटीशन के तरफ कौन से लोग थे जिन्होंने आपको समझाया, सिखाया, गाइड किया कि आप ये एग्जाम दो और इंशाल्लाह आप कामयाब हो? क्योंकि उस जमाने में कोई कैरियर सेंटर नहीं था, कोई गाइडेंस सेंटर नहीं था, कुछ भी नहीं हो करता। लोग इधर उधर से मालूम जानकारी हासिल करके किया करते थे। तो आप वो चीज़ हमें बताएं सामीन को कि आपने तालीम क्या हासिल किया, आखिरी तालीम, और फिर आप रागिब किस तरह हुए कंपटीशन की तरफ। तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये चीज़ आज की नस्ल को नहीं मान, सब कुछ उनको हाथ में करके मिलता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। काउंसलिंग वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आप जो है खुद सेल्फ काउंसलर, सेल्फ सब कुछ अपने आप में थे। तो वो जरा वाकया बताएं, उम्मीद है कि सामीन को इससे मुस्तफीज होंगे। जी मैं क्लास 12 में ही था कि हाँ किसी मेरे सीनियर दोस्त ने बताया कि भाई तुमको नौकरी करनी है क्या। तो मैंने कहा करनी है, तो एक फॉर्म ला के दिया। पता चला कि वो पीएससी क्लर्कशिप का फॉर्म है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पीएससी क्लर्कशिप क्या होता है। तो मैं ये वाकया बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि हाँ जी। एग्जाम हॉल में गया। हाँ उस वक्त मेरी 18 साल की उम्र हुई थी, जस्ट क्वालिफाइंग एज हमारा हुआ था, नौकरी के लिए एलिजिबल हुए थे हम। क्लास 12 में 1982 1982 का बैच था मैं, पीएससी क्लर्कशिप का। तो वो एग्जाम मैंने दिया, और एग्जाम हॉल में मैं ज्योमेट्री बॉक्स लेकर गया। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, हाँ मुझे ये नहीं मालूम था कि उसमें अर्थमेटिक आने वाला है, उसमें मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो हाँ टाइम भी उड़ा है कि आप ज्योमेट्री बॉक्स क्यों लाए हो, एनीवे। तो मैंने हाँ एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद 2 साल के बाद रिजल्ट हुआ 1984 में के लास्ट में, और मैं 85 में सबसे पहली बार कमर्शियल टैक्स में कलर की हैसियत से हाँ, सेल टैक्स में ज्वाइन किया। हम्म, 1985 की जनवरी में ये मेरी पहली नौकरी थी। और माशाल्लाह जी। उसमें उस अच्छा, वक्त मैं बस ये पहली जी नौकरी जो आपको मिली, तो आपका जी आपका एक्सप्रेशन कैसा था? क्या लगा था आपको? कैसा लगा था, जरा बताएं। मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल गई थी, और मेरे मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे खानदान के लिए हम्म, और गांव वालों के लिए, कोई गवर्नमेंट में नौकरी पा लिया हो, क्लर्क हो गया हो, बाबू हो गया हो, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ लेकिन लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है।
सो मैंने नौकरी करते करते, यानी क्लर्कशिप की नौकरी करते करते, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त 20 साल की थी जब मैंने हाँ नौकरी ज्वाइन, हाँ मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। हाँ। और जब बहुत सारे एग्जाम दिए तो जाहिर सी बात, आपने बताया कि उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ से नोट्स वहां से नोट्स मांग के मैनेज करके जी वो जी। वो पढ़ पढ़ के किसी तरह एग्जाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मैं WBCS बना 1988 के बैच से, ये मेरी नवीं नौकरी थी, नाइन्थ जॉब था। माशा इस अल्लाह बीच माशा। इस बीच में मैं UPSC असिस्टेंट ग्रेड, इलाहाबाद बैंक PO, आपका पोस्ट पोस्ट वो पोस्ट पोस्ट पोस्टल सर्विस का जॉब, और बहुत सारा जॉब छोड़ते गया, यहाँ तक कि मैं 1987 में IAS अलाइड में आया था, जो मुझे अंडमान निकोबार दिया गया था, लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन नहीं किया। अल्टीमेटली मेरे साथ एक ही महीने में पांच पांच अपॉइंटमेंट लेटर थे। अब मुझे फैसला करना था कि मुझे करना क्या है। मुझे WBCS, देखिए इत्तेफाक से माशाल्लाह WBCS को माशाल्लाह। आप ये प्लेटफॉर्म देखें मिले। तो रिजवान साहब, ये जी। बस इसको आप क्या कहेंगे कि कोई कि इसमें सिवाय अल्लाह के, अल्लाह का करम के अलावा कुछ नहीं होता है। इम्तिहान देने वाले बहुत सारे होते हैं, जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है वही कामयाब होता है। मेहनतें सबकी होती हैं, लेकिन कामयाब वही होता है जिसको अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए लिख दिया होता है। तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, और एक ही साथ में पांच पांच नौकरियां बहुत कम को नसीब होती हैं। देखिए बस ये है कि आपको कहीं और आगे जाना था, फिर आपने WBCS का एग्जाम दिया, और आप उसमें भी कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद अब आपने आपने क्या सोचा कि हम जिस हालत से उठ के आए हैं, और यह हमने नौकरी हासिल कर ली, घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, ऐश करेंगे, क्या किस तरह की बातें आपके ध्यान में थी? क्या आपने ये सोचा कि जो है हमारा जो हमने जो अचीव किया है, तो क्या हमको सोसाइटी को रिटर्न भी कुछ करना है? किस तरह के ख्यालात आपके जहन में आए? जरा ये सब बातें लोगों से शेयर कीजिए। जी प्रोफेसर रियाज साहब, आप, मैं जिनसे बात, जिनका जो मेरे होस्ट है आज के प्रोग्राम में, मेरी खुशनसीबी है हाँ, कि खुद बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मैंने बहुत लोग जानते होंगे जो लोग यहाँ पे आज इनवाइटी हैं, कि आप दुबई में, UAE में मैथ्स के प्रोफेसर हैं। आपके अंडर में बहुत सारे लोग मैथ्स पे रिसर्च कर रहे हैं। आपके आर्टिकल रोजाना इंटरनेशनल मैगजीन में छप रहे हैं, और वो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं। भी आपने जो सवाल पूछा है, तो मैं बताऊं कि ये WBCS बनने के बाद नहीं, बल्कि अ, हमारे व्यूवर्स को या हमारे जो यहाँ जो लोग इनवाइटीज हैं उनको सुनकर खुशी भी होगी कि मैं जब सिर्फ और सिर्फ 19 साल का था, यानी 19 साल का था, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बहुत कम उम्र थी, तो मुझे ये लगा कि मैंने जो जो दिक्कतें झेली हैं, या मुझे जो जो मुसीबतें हुई हैं, और अगर मैं जरा भी दूसरे लोगों की मुसीबत कम कर सकूं, मेरे जो पीछे खड़े हैं जो बच्चे, यानी अनप्रिविलेज प्रिविलेज बच्चे, जो गरीब बच्चे पीछे खड़े हैं, तो हमने सबसे पहले, आज मरहूम कलीमुद्दीन शम्स साहब यहाँ नहीं है, लेकिन उनका साहबजादा मरहूम मोइनुद्दीन शम्स साहब, जो MLA भी रह चुके हैं, वो अब हमारे बीच नहीं है। उन उन उनको साथ लेकर हमने 1983 में पहली बार हमने एक बुक बैंक किया। और बुक बैंक का कंसेप्ट बिल्कुल नया था। मैं समझता हूँ खजीबू के लिए भी, कलकत्ता के लिए भी। बैंक का नाम हमने सुना था कि वहां से पैसा लेते हैं और देते हैं, तो हम लोगों के जहन में आया, हमारे जहन में आया कि क्यों ना एक बुक बैंक कर लिया जाए। और उसके एक मैंने क्लास 7 का बच्चा अगर 8 में जाता है, तो क्लास 6 का बच्चा जब 7 में जाता है, तो वहां से वो मुस्तफीज हो सके। तो हमने एक बुक बैंक किया, और तकरीबन उसमें शुरू शुरू में 50 बच्चे मुस्तफीज हो रहे थे। बाद में ये बैंक बहुत बड़ा हो गया, और तकरीबन इसमें तकरीबन 600 बच्चे मुस्तफिज होने लगे। फिर हमने ये क्या कि उसके बाद जब हम WBCS बन गए, तो हमें लगा कि 1990 में ही जब ज्वाइन किया हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की हैसियत से, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेले नहीं बनूंगा, मेरे पीछे और भी लोग आएंगे। और तब मैंने WBCS के लिए कोचिंग का इंतजाम किया। यही एक आदर्श हिंदी हाई स्कूल है, उसको मैंने हायर किया। आदर्श हिंदी हाई स्कूल ने बाकायदा बिना पैसे का, जो हमारे गरीब बच्चे थे हमारे इलाके के, उन तमाम लोगों को बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत, कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसका ध्यान दिए बगैर हमने उन लोगों को शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सारे लोग आज तकरीबन, काफी लोग कामयाब हैं। और ये सफर वसों से चलता रहा। और मुझे, बस आपने जो पूछा ना, कि मेरा एक ही मकसद था कि मैं जैसा स्ट्रगल किया हूँ,
उस स्ट्रगल में जो लोग भी हैं, मैं जरा भी काम आ सकूं तो इससे बड़ा इनाम या इससे बड़ा बंगलो या इससे बड़ी दौलत हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं हो सकती है। और मैं 62 साल की, मैं जो रिटायर किया उसके बाद 62 साल की उम्र होने को चली है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये जारी है वो सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जज्बा जो है अल्लाह ताला सबको नसीब करे। आमतौर से ऐसा होता नहीं है, इसी वजह से आप रिजवान साहब में मशहूर है। मैं इकबालपुर में इकबालपुर में रह चुका हूँ, इकबालपुर लाइन में रह चुका हूँ 2 साल। वहाँ वहाँ बरकती साहब से हमारे साथ ताल्लुकात थे। उस जमाने में मैं वहाँ, जिस वक्त मैं वहाँ पढ़ाने जाता था, वहीं मैं रहा करता था। मुझे मालूम है कि आप जिस जगह से आ रहे हैं उस जगह के हालात क्या थे उस जमाने में। मेरा मेरा ख्याल है कि अभी तक वहाँ कोई अच्छे ढंग का कोई स्कूल अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी है। उसमें आपने एक अल्टरनेटिव निज़ाम कायम किया और लोगों को फायदा पहुंचाने की सोची, तो अल्लाह ताला इसका आपको अजर जरूर देगा। लेकिन असल ये होता है कि कोई भी आदमी, हमारी कौम की एक बहुत बड़ी जिबिल्लत है कि ये हाथ बढ़ाते हैं आपको आगे नहीं ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी टांग खींचने के लिए। तो आपने जब ये काम किया होगा, और जो है आपको अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाज रहे होंगे, तो सारे लोग जो है आपके चाहने वाले ही मिले, या कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने आपके राह में रोड़े अटकाए और आपको जो है काम करने से रोका, और या नहीं, एक हल्की सी बात करके पॉजिटिव बात ही आगे बढ़ाइए। तो लेकिन ये है कि ऐसा होता है, तो ये जानना जरूरी है कि क्या आपने ऑब्स्टेकल भी झेले, उसके बावजूद भी आप कायम रहे, सस्टेन किया आपने। ये कौम जानना चाहेगी आपसे। जी, ये 42-43 साल का जो हमारा एजुकेशनल वर्क है, हम्म, तो जाहिर सी बात है कि इस एजुकेशनल वर्क में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। हम्म, हमारे अदारे को हाईजैक करने की कोशिश किया गया, हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्टर्स करने की कोशिश किया गया, वगैरह वगैरह तो होता ही रहता है। हाँ, लेकिन ये सब हमने बहुत पॉजिटिव वे में लिया कि हम्म, जो जिन लोगों ने भी ये किया था, हम्म, तो रहता ऐसा हुआ कि जैसे होता है ना कि लंबे रेस में जो लॉन्ग जंप होता है, हाँ, तो लॉन्ग जंप में जितना पीछे से आप दौड़ेंगे हाँ, तो उतना लंबा जंप हम कर पाएंगे। जी, तो जब जब इन लोगों ने मुझे रोका, तो हाँ, मैं थोड़ा पीछे हटा और वहां से और तेज दौड़ा ताकि और लंबा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं किड्स चलाता हूँ, यानी कभी तीर्था इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज, हाँ, जो खजीपुर से शुरू हुआ था, हम्म, अभी मगरबी बंगाल में खजीपुर से लेकर इस्लामपुर तक, रानीगंज, आसनसोल, इस्लामपुर, कमरहट्टी, जगदल, काकेन्द्र, मतलब हर जगह, बजबज वगैरह, तकरीबन हमारे 26 सेंटर। अभी मैं हमारा एग्जाम होने वाला है, जो हम एग्जाम लेते हैं, उसमें तकरीबन एक्सपेक्टेड 12,000 बच्चे उस एग्जाम में शरीक होने वाले हैं। हम्म, तो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हमें जिन लोगों ने नेगेटिव किया वो हमारे लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले कर गए कि नहीं, माशाल्लाह। मुझे और भी अच्छा करना है। यही और मुझे ड्राइव किया। और इसमें जो एक खास बात है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें आपने जो रखा था कि अ, इसमें हमारे कुछ जो लोग हैं, साथ में लोग हैं, वो लोग भी हमारी तरह मिल गए। उनका मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। पिछले 25-30 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक सेम टीम काम कर रही है, और वो टीम हम पर ट्रस्ट करती है, भरोसा करती है। लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मोहब्बतें जो अमिताभ बच्चन की हमने देखी थी, और वहां से हमने जो एक मकसद अखज किया था कि वैसा ही गुरुकुल मैं बनाऊंगा। और इसीलिए हमारे किड्स का एक जो विंग है वो गुरुकुल के नाम से है, जहां हम रेसिडेंशियल कोचिंग देते हैं बच्चों को। तो वैसा गुरुकुल अ, आपकी दुआ रही तो इंशाल्लाह 2026 में हम हम्म, उसकी बुनियाद बुनियाद रखने जा रहे हैं। और अब तो ठीक है कि यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ उतनी जगह भी नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा हटकर हम एक अच्छा स्कूल जो इंटरनेशनल लेवल का स्कूल हो वो बनाने का इरादा है, और मुसम्मम इरादा है। आपकी दुआएं और अल्लाह का साथ, भगवान का साथ मुझे चाहिए। ये जो आप मदद कर रहे हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्या होता है? जी, ये जो लोग आते हैं हमारे यहाँ बेनिफिशियरी, आप जानते हैं कि खिजरपुर या कलकत्ता, या जो लोग आज उर्दू मीडियम, बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम्म, तो जाहिर सी बात है उनके माँ बाप बहुत गरीब है। जी, अगर वो फिनेंशियली साउंड होते तो अपने बच्चों को सेंट थॉमस में, लामार्ट में, सेंट जेवियर्स में पढ़ाते। जी, तो जी, हम वो वर्नाकुलर स्कूल में नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो काम है, हम्म, हम वर्नाकुलर स्कूल को लेकर काम कर रहे हैं, मानी वहाँ के बच्चों को। क्योंकि आप जानते होंगे कि लामार्ट के जो टीचर्स हैं
उनकी तनख्वाह माने उनका जो सैलरी है इन कंपैरिजन टू जो वर्नाकुलर स्कूल के जो परमानेंट टीचर्स है उससे बहुत ही कम है। लेकिन आउटपुट सेंट जेवियर्स का, लामार्ट्स का, सेंट जेम्स का जैसे स्कूलों का ज्यादा अच्छा है। हमारे स्कूल का आउटपुट अच्छा नहीं है। तो उसको कैसे अच्छा बनाए, इसको 4 टियर मोटिवेशनल प्रोजेक्ट एक रखकर जो जो हमने महसूस किया कि उसमें हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप जो है अक्सर व बेशतर कम पढ़े लिखे हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैंने मैं वो वक्त इतना नहीं है मैं सुनाता। खैर, कि ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी बच्चे को जिसका नाम शमशेर आलम था, मैं उसको ढूंढने गया तो उसकी माँ बोली कि नहीं ऐसा तो कोई नाम का रहता नहीं है। जब एक बच्चा दौड़ते हुए आया तो हमने कहा यही तो शमशेर है, तो बोले नहीं ये तो मेरा बेटा कलुआ है, ये तो मेरा शमशेर नहीं है। तो ये भी हुआ है काम करते करते इत्तेफाक हमारा कि जी अब माँ, यहाँ के जो गार्जियन है कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप बेटे का अच्छा नाम मैंने अच्छा नाम क्या है, गुड नेम क्या है, वो भी नहीं जानते हैं। तो हम ये बहुत बड़ा ये क्या ट्रेजेडी नहीं कहेंगे बल्कि ये यही हकीकत है। और इस हकीकत की रोशनी में इन गरीब बच्चों के लिए उनके माँ बाप को मोटिवेट करके ताकि उनके बच्चे ड्रॉप आउट ना हो जाए, उनके बच्चों को क्या क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, फीस के लिए, किताबों के लिए, उनके लिबास के लिए या उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या क्या जरूरत है उनको हम मुहैया कर सके। और एक तो है कि हमारे जो स्कूल के टीचर्स है, मैंने महसूस किया कि शिव खेरा की बहुत मशहूर किताब है जिसमें यू यू कैन विन, और ये किताब मेरे लिए बहुत ही अहम अहम है मेरी जिंदगी में। उसमें एक केस स्टडी है जिसमें शिव खेरा ने बताया कि एक केस स्टडी आपने भी सुना होगा कि जी जी पूछा गया कि भाई आप एक दिन में 10 गाछ काट लेते हो, माने ट्री काट लेते हो, और ये बंदा जो है इतना पुराना है लेकिन ये सिर्फ 2 ही काट पाता है। तो वजह ये था कि जो बंदा 10 काट रहा था वो अपने कुल्हाड़ी को हमेशा धार दे रहा था, यानी शार्पन द एक्स कर रहा था। हमारे जो वर्नाकुलर स्कूल के टीचर है वो बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न साइकोलॉजी है या जो मॉडर्न जो एस्पेक्ट्स है टीचिंग का, उनको उनको जस्ट गाहे बगाहे महीना 2 महीना 6 महीना में धार देने की जरूरत है। उसके लिए हम हमेशा 2 महीने 4 महीने 6 महीने पर वर्कशॉप करते रहते हैं ताकि उस उन टीचरों के साथ हम तबादला ख्याल कर सके। तो टीचर को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनके लिए भी प्राइजेस अवार्ड्स बहुत सारा है, माँ बाप के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको हायर स्टडीज के लिए, ये कह लीजिए कि 11 12 में पढ़ने के लिए या फिर ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर नीट के लिए जी या दूसरे चीजों के लिए हम करते हैं। फिर आपने सुना होगा कि यहाँ पे एक हमारे बहुत ऑनरेबल मेयर हैं जो बहुत ही कौम का दर्द है उनके सीने में। उन्होंने उनके नाम से एक अदारा चलता है यहाँ, फिराट ठट्टी के नाम से। फरहाद हकीम ठट्टी, जी, फिराट ठट्टी, जो पटना में सुपर ठट्टी से जी उनसे मुतासिर होकर किया गया है। वहाँ हम्म, WBCS की कोचिंग होती है बदाफ्ता, हम्म, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसे वाली उसकी कोचिंग होती है बदाफ्ता। हम 5 बच्चे को हमारा अदारा इनकी फरहाद हकीम साहब की सरपरस्ती में दिल्ली भेजते हैं IAS की कोचिंग के लिए, और वहां से सारा खर्च अदारा उठाता है। तो ये सारा काम इसलिए चल रहा है कि दुआएं हैं और पॉजिटिव मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वेरी गुड डिटर्मिनेशन है और जिद है। जिद की बहुत जी सारी बातें दिख। आपके इससे दो बातें मैं यहाँ निकल के आती हैं कि आपने जी महसूस किया कि उर्दू मीडियम वर्नाकुलर जो स्कूल है और इंग्लिश जी मीडियम स्कूल है दोनों का आउटकम में बहुत फर्क होता है। तो जी लेकिन इसके बरस के हमारे यहाँ टीचरों को तनख्वाह ज़्यादा मिलती है और जी उनके टीचर को तनख्वाह कम मिलती है। अब जी यहाँ ये जो बातें हैं, अब इसको कैसे सुधारा जाए? मैं भी महसूस किया, मैं खुद रह चुका हूँ 8 साल कम्युनिटी में एक टीचर रह चुका हूँ और फिर मैं अभी भी टीचिंग प्रोफेशन में मैं आ गया। लेकिन ये बात तो ऑटोमेटिकली है, यहाँ तक कि अभी ये नौबत आई है कि बहुत सारे स्कूल ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, बंद होने वाले हैं। टीचर की कमी है। एक तरफ जो है उर्दू का झंडा लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ तकाजा है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाए। जो लोग उर्दू को झंडा लेके बुलंद हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं इसलिए कि उर्दू मीडियम स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ये जो एक सिचुएशन खड़ा हुआ है, इस सिचुएशन को आप कैसे मेकअप करेंगे? आप प्राइवेट इदारों से इसको तो मेकअप नहीं किया जा सकता। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उसमें अगर अच्छे से पढ़ाई हो, टीचरों की
तादाद में कमी ना हो। कहीं 30, जब मैं कम्युनिटी हाई स्कूल में जब मैं छोड़ के गया था उस वक्त 47 टीचर्स थे। अभी जो है जाके देखे, अभी वहां पर टीचरों की तादाद, परमानेंट टीचर की तादाद मुश्किल से 5-6 बची हुई। तो अब आप ये 5-6 टीचर कैसे 2000-3000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भी सोचने की और समझने की हैं सोसाइटी के हवाले से। सोसाइटी को मस्ट थिंक अबाउट दिस वन, अदरवाइज the patch of work that you people, other people are doing will not be sufficient. It will crop sometime, because you need a lot of energy to do all this work. It is very difficult to find a person like Rizwan Ahmad again, you, and it will contain or sustain for longer time. So people must think all these points, that the existing teachers must take the responsibility. What they are earning, they are giving or returning or not. So this is the point. And wherever you go for giving them workshop, I think you must remind them the responsibility. I have seen one teachers teaching in 2 or 3 schools. When I was a permanent teacher in a community, I used to go to Mama Janovar just for the sake of my love in the morning, and imagine the time that I was wasting just for doing this. Are the people doing? The people will open the homeopathic doctor shop. They will open their own shop. They come to the school just in the part time, or go to the duty for their full time. All these are still existing, or the people are aware now, they become responsible? Just in brief, give me an answer to this question. सर असल में मेरी खुशनसीबी है कि मैं मोहम्मद जान के स्टूडेंट रहा हूँ, हाँ, और सब जानते हैं कि वहाँ एक अख्तर साहब नाम के मास्टर हुआ करते जी थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अपने अपने चेम्बर से निकलते थे तो टीचर सीढ़ियों पे दौड़ते थे। जी 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 और वहाँ शमीम सर जैसे लाइफ साइंस की टीचर, नबी सर जैसे अलजबरा की टीचर, जी। और बहुत सारे टीचर। आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ टीचरों को जिम्मेदार ठहराने से नहीं होगा। इसके बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं और भी वजूहात है। टीचर्स तो एक वजह है कि उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, या खुद सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, शार्पन दैट्स की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा ये देखिए कि स्कूलों में हमारे यहाँ सिर्फ 2 एग्जाम होते हैं, सिर्फ 2 एग्जाम, एक हाफ ईयरली, एक एनुअल। जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में यूनिट टेस्ट के नाम से, मंथली टेस्ट के नाम से, वीकली टेस्ट के नाम से बच्चों को हमेशा सिलेबस से एक्वेंटेड रखा जाता है, सिलेबस से करीब रखा जाता है। तो हम जो ये सेट माने स्टूडेंट्स इवोल्यूशन टेस्ट जो हमारा है, जो हर 3-3 महीने में एग्जाम लेते हैं, इसका मकसद यही है कि बच्चे अगर 6 महीने में एग्जाम देंगे तो 5 महीने तक वो सोए रहेंगे, 1 महीना या 15 दिन पढ़ेंगे। तो अगर बच्चों को छोटा छोटा टारगेट दे दिया जाए कि बाबू तुम्हारा हर महीना या हर 2 महीना 3 महीने में एग्जाम होता है, तो बच्चे अपने सिलेबस से करीब रहेंगे। और उन टीचरों को भी अगर ये दे दिया जाए कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और आपको अगर आपका बच्चा फिजिकल साइंस में हाईएस्ट लाया तो आपको भी अवार्ड देंगे हम, तो उनके अंदर इंटर स्कूल एक कॉम्पिटिटिवनेस पैदा होगा। और यही वजह है कि 2006 में ये प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे थे ये हमारे सेट में। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 बच्चे फिर से एग्जाम देने बैठ रहे हैं। और ये इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें वालिदैन का भी रोल है, इसमें स्टूडेंट्स का भी रोल है। और ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही कामयाब हुआ है, जिसको हम सेट बोलते हैं, स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट। तो इस तरह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम देखिए, आप भी तो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, और आप जैसे बहुत लोग हैं जो कामयाब है, अमेरिका में है, दूसरी जगहों पे है। तो ये मीडियम कोई फैक्टर नहीं है। आज भी अगर हम पढ़ाई को अपने दिल से करें और टीचर्स अपनी जिम्मेदारी निभाए, माँ बाप मिनिमम अगर वह अपने बच्चों को देखें, तो हमें लगता है, और कोई समाजी अदारा कैटलाइज करे, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। हम उस अमली कीमियाई तहरीक को या अमली तहरीक को हम बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग और भी अच्छा कर पाएंगे। जी, वेरी गुड। आपने ये जो बात कही बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें एक एक बात यहाँ से और निकल के आती है। आपने कम से कम हजारों बच्चों को फारिग किया होगा, अच्छे अच्छे मकाम पर लोग लगे होंगे। आपके वो तमाम बच्चे जो आपके जरिया मदद की वजह से अच्छा मकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या वो बच्चे अभी वो अपने कौम को कुछ देने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप उनके ऊपर जिम्मेदारी लीगेसी डालते हैं कि आपको हमने मदद की है,
ये मदद, जो आप फिल्म की बात कर रहे हैं, तो एक सलमान खान की फिल्म भी थी कि एक को आप मदद करो वो तीन की मदद करे। तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम आप लगाते हैं कि आपको, मेरा ख्याल है कि हर बच्चे से ओथ लेना चाहिए कि हम तुम्हें मदद कर रहे हैं, तुम भी जब पढ़ लिख के कामयाब होगे तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी होगी कि अपने जरिए दो तीन चार बच्चों की तुम मदद करोगे। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि कोई भी ऐसा अदारा आपको नहीं मिलेगा जो आज का जनरेशन जो है, जो आपको आईटी सेक्टर का जो जनरेशन है, कोई कौमी खिदमतगार के हिसाब से कोई आगे नहीं निकल रहा है। जितने भी इंजीनियर आपने पैदा किए हैं वो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। कोई भी आगे बढ़ करके आपकी तरह, किसी और की तरह, किसी भी सोसाइटी से मुंसलिक नहीं है और ना कोई सोच रहा है। इसके बारे में जरूर जरूर सोचा जाना चाहिए कि जो हम पैदा कर रहे हैं वो लोग हमारे फिर रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं। खाली हम करते जाएं, उनको देते जाएं। वो इसी तरह से हुआ, बाप ने बेटे की शादी की, बेटा बहू को लेकर निकल गया, बेटा जो है, बाप जो है अपना फिर वही मुंह ताकते रह गया। मैं थोड़ा सा हल्के जुबान में बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो जी यही है ना कि ये बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। लीगेसी मस्ट बी कंटिन्यूड एंड मेंटेन्ड एंड सस्टेन्ड एज वेल। ये जो बच्चों को आप मेहनत कर रहे हैं उनकी हाँ जिम्मेदारी क्या है? तो हमें तो, जी मेरा ख्याल है कि जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला सेशन ये होना चाहिए कि हम जो तुमको हम सिखा रहे हैं ये आपको, ये फ्री नहीं है, ये आपको रिटर्न करना है। आपको ये कर्ज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको समाज को रिटर्न करना है। जब तक ये नहीं होगा, आप देखिए पिछले 15 साल से हजारों तादाद में मुसलमान इंजीनियर बन रहा है। एक भी ये इंजीनियर का ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा जो आपका अपने इलाके में बैठ कर कोई काम कर रहा है। सब फ्लैट खरीद रहा है, ऐश कर रहा है, बाल बच्चे के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन कौम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा। तो ये सारी बातें जो है जहन नशीन रखनी चाहिए। और जिनको जिनके हम मदद कर रहे हैं उनसे रिटर्निंग के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर इख्तियार करना चाहिए। आप क्या मैं, आप मेरी बात आपको ये समझ में आ रही है? तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मुख्तलिफ जिलों में मैंने बताया आपको, पूरे मगरबी बंगाल में जो लोग काम कर रहे हैं, हम्म। तो जाहिर सी बात है कि सब मेरी तरह बूढ़े नहीं है। हम्म। उसमें वो लोग भी है जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। हम्म। अब उस लेगेसी को, उस चराग से चराग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह, लेकिन आपने माशाल्लाह। जो वोट की बात कही, आपने वोट की बात कही, हम्म। तो ये भी बाज़ाब्ता हम अल-अमीन मिशन जैसा यहाँ कर रहा है बंगाल हाँ। में। तो उस तरह का उस जगह तो हम नहीं पहुंच पाए हैं, बल्कि आसपास भी नहीं आ पाए हैं। हम्म। लेकिन आने वाले दिनों में जब हम गुरुकुल की का बुनियाद बताता रखेंगे, तो हम्म। ये वोट का सिस्टम हम जरूर इंशाल्लाह वहां रखेंगे, हम्म। ताकि वोट लेकर लोग जब करें तो उनको कर्ज की शक्ल में, ये हम्म। भैया बुक बैंक नहीं है, ये जो है वो कौम की खिदमत का सोशल वर्क या एजुकेशनल वर्क बैंक है। यहाँ जी। आपको आपने लिया है तो वहां देना पड़ेगा। जी। ये बहुत बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपकी। बहुत जरूरी है, जी क्योंकि इसके जी बगैर जो है कंटिन्यूटी नहीं जी रहेगा। आपके जी बाद फिर कौन वाला सवाल होगा, और फिर जो है जी मैदान खाली होगा फिर उसी तरह से। तो आप आपने ये आपके जो तजुर्बात है, आपके जो फीलिंग्स है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने सीखा, जो आपने मेहनत करी, उससे आपके जहन में बहुत सारी एक ऑब्जर्वेशंस आए होंगे। आप जो आने वाली नस्ल को जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उनको क्या रहनुमाई करना चाहेंगे, उनको क्या एक प्लान के हिसाब से आप बताएंगे? कोई ऐसा ढांचा, कुछ ऐसा तरीका उनको बताएं ताकि कि वो लोग भी जो है इसमें आगे बढ़े, इनको कौम की जिम्मेदारी समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। क्योंकि मुसलमान जो है, मुसलमान एक फर्द वाहिद का नाम है, मुसलमान एक कौम का नाम है। मुसलमान जो है कौम कौम की हैसियत से ही जाना जाता है। तो अगर एक एक इंसान जो है अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो कौम को नजरअंदाज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी डेफिनेशन से बिल्कुल अलग हो गया। जब 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 तक मुसलमान जो है कौम के बैनर पर चला करता था, कौमियत जिंदा थी तो मुसलमान भी जिंदा था। आज कौमियत नहीं है तो मुसलमान भी फर्दन फर्दन भी पीट रहा है, और जो है कौम के हिसाब से तो पीट ही रहा है। तो आप जो है इस कौमियत के जज्बे को कैसे आप उभारेंगे ताकि एक जो है एक यूनिफाइड कौम की हैसियत से एक कौम के मसले को हल करें? एक फर्द वाहिद, एक ग्रुप ऑफ पीपल पूरे कौम का मसला हल नहीं कर सकते। पूरे कौम को जो जिस इलाके में है, आपको उसको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। आप इसको एस्केप कर नहीं सकते। अगर आप एस्केप करते हैं तो आप अपने आने वाली नस्ल को एक ऐसे मुकाम पर छोड़ जा रहे हैं जो कल हो करके
तबाह बर्बाद हो जाएगी। आप ये चाहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि मेरी औलाद जो है वो मुसीबत ना हो जो हमने झेला है। तो मुसीबत आपने झेला है, एक एक दरख्त का आप पौधा लगाते हैं, आप रात देखभाल कीजिए, अगर क्लाइमेट अच्छा नहीं हो तो आप पैदा कर लेंगे? नहीं कर सके। एक पौधे को पैदा होने के लिए सिर्फ बागवान की जरूरत नहीं होती है, उसको आबोहवा की जरूरत होती है, लोगों की दवाई की जरूरत होती है, बदमाश लोगों से उस पौधे को बचाना पड़ता है। इतनी सारी चीजें मिल करके एक इंसान को एक पौधा डेवलप करता है। ठीक इसी इसी तरह से जो है, आपके अगर दोस्त उस जमाने में गलत सोबत में आप पड़ जाते, जो इकबालपुर और उस जगह इलाके में हुआ करता था, तो आप फिर बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच पाते। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये ओवरकम नहीं होगा। कुछ तो भला हो जाएगा, एक तरफ का पानी जो लीक हो रहा हो तो फुल हो जाएगा, लेकिन अंदर में प्रेशर फिर बढ़ेगा, दूसरी तरफ लीक हो जाएगा। तो ये बातें कौम को समझने की जरूरत है। आपकी राय इस बारे में क्या, जो मैंने अभी तज़किरा किया? जी, आप खुद बहुत बड़े मोटिवेटर है, मैं जानता हूँ कि और दुनिया की सारी किताबें, जितनी किताबें हैं ना मोटिवेशन की, सब में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं जी कि हमारे जमाने में और आज के जमाने में जो फर्क है, सिग्निफिकेंट फर्क है, जो जी डिफरेंस है, जी वो ये है कि उस जमाने में शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग का कोई सोर्स नहीं था, जो आज कॉल सेंटर की शक्ल में, बीपीओ की शक्ल में, या यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ बहुत सारे मार्केट की शक्ल में, फॉरेन गुड मार्केट की शक्ल में है। तो इसमें बहुत चैलेंजिंग हो गया है बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना, शॉर्ट टर्म मशीन से लेकर यहाँ लाना, ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है। जी तो और एक जो खास बात जो बच्चों के जहन में डाल दिया गया है, या बच्चे उसको लेकर बैठे हुए हैं कि माल प्रैक्टिसेस, करप्शन, सोर्स वगैरह वगैरह। मेरा मशवरा सिर्फ वन पॉइंट मशवरा है, जो बच्चे एक्सपीरियंस है, जिन जिन तक उनके माँ बाप के जरिया या डायरेक्ट हमारी बात पहुंच रही है, कि सबसे पहले आप ये दिमाग से निकाल दो, मुकम्मल तौर से निकालो, कि आप किसी माल प्रैक्टिस के सफर नहीं हो। अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो अगर एक पोस्ट है, A1 पोस्ट, ये कोई मैं इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, तो 1 पोस्ट है, तो आप वो आपके लिए है। उसके लिए आपको जैसे बचपन में जिद्दी बनते थे माँ बाप से खिलौने खरीदने के लिए, आपको अभी खुद से जिद्दी होना होगा कि ये कप ऑफ टी मेरा है, और ये सारी बातें फजूल है, कि ये सोच लगता है, पैसा लगता है। ये हमें नहीं लगता कि वेस्ट बंगाल में मैं भी तो हूँ, तो नहीं लगता है। और ये जो छोटी छोटी आपकी उम्र निकल जाएगी, जब 30 के हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आपका वक्त है, आप अभी जिंदा आंखों से, माने आप सोए हुए में हालत में नहीं, बल्कि जगे हुए हालत में जो ख्वाब देख रहे हो, उसकी ताबीर करो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।